Assalamu alaikum everyone. This is Sidra Bilal from Kamai Placement Team. Let's wait for 5 minutes to start a session ताकि 5 मिनट के अंदर हमें हमारी ऑडियंस ज्वाइन कर ले. I think we should start now. So I would like to welcome you all in our first episode of Career Conversation. Before starting this session, let me guide you through instructions. Hello, Ms. Mudassra, you are connected with us. So let me guide you through instructions. ये जो webinar है, this session will be in 1 hour, 1 घंटे का session रहेगा. अगर आप में से किसी Yes, I am connected with you. I can hear you. Thank you, Ms. Mudassra. So let me introduce me with the company and with the audience, ताकि then we will start. So let me guide you through instructions, guys. ये जो वेबिनार है बेसिकली 1 आवर का वेबिनार है. अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो यू जस्ट नीड टू ड्रॉप योर क्वेश्चन इन Q&A बॉक्स के अंदर, जो कि लास्ट 15 मिनट्स में आपको आंसर किए जाएंगे. प्लस अगर आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चन जो है डायरेक्टली स्पीकर आंसर करे तो जस्ट आप मोर पे जाएंगे और रेज हैंड पे क्लिक करेंगे. देन मैं अपनी साइड से आपको अनम्यूट कर दूंगी और यू विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम आवर स्पीकर. So before going in detail and start this session, मैं आपको कमाई के हवाले से बताना चाहूँगी, plus why we are starting these web series. So Kamai is basically providing an end-to-end recruitment solution to different SMEs in Pakistan. SMEs basically ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनीज हैं जिनके अपने HR नहीं होते और रिक्रूटमेंट इज काइंड ऑफ अ पार्ट. HR का ऐसा फंक्शन है जो उनके लिए कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है. सो वी आर हियर जस्ट मेक देयर लाइफ इजियर. सो आवर गोल इज we are making our process easier, faster and reliable for our clients. Now alhamdulillah we are also targeting facilitating large group companies as well. So question is कि हम लोगों ने ये वेबिनार क्यों स्टार्ट किया, ये वेब सीरीज क्यों हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया. For everyone, अगर मैं भी हूँ तो for me, for everyone to start a good career is always difficult, especially इस uncertain और challenging environment के अंदर. बहुत दफा होता है we face rejections and many times हम लोग अपनी career guidance की aware नहीं होते कि in which field we need to go. बहुत दफा हम interviews देते हैं और उस interview में select नहीं होता, then we will change our path. So after seeing these things, we thought we should come up with a career conversation web series जिसमें we will call different HR professionals जो कि हमारे साथ अपनी इंसाइट शेयर करेंगे, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, who will let us know about the market trends. Plus candidates क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं when they are trying to be entered in corporate sectors. So for this session, इस session के अंदर writing a prolific resume, we will cover how we need to write a good resume. So for this session, we have our speaker, Ms. Mudassra Hassan. So Ms. Mudassra has extensive experience in HR with multiple organizations. She worked in packages, she worked in Honda and UBL. Currently, she is working as an HR manager in Outfitters. Welcome, Ms. Mudassra. Kindly unmute yourself. Ms. Mudassra, kindly unmute करती हैं? Yeah. Thank you so much, Sidra, for taking me on board for this session. I am really obliged
and I'm really thankful to you. Thank you so much for joining us. So yes, and thank you every participant to be part of all this session. And मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे आज कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक या दो अच्छी बातें यहाँ से सीख के जाएंगे कि आप अपनी रेज्यूमे बेहतर कैसे कर सकते हैं, ताकि आप एम्प्लॉयर आपको कॉल करे फॉर द इंटरव्यूज एंड आई जस्ट गाइड यू कि ये बेहतर मजीद कैसे हो सकता है. सिद्धार्थ, जस्ट टेक इट फॉरवर्ड. थैंक यू. ओके एवरीवन, हम बेसिकली इस पूरे वेबिनार में जो डिस्कशन करेंगे, जिस हवाले से आपको गाइड करेंगे, इट्स अबाउट अ सीवी. ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सीवी, एक सीवी का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव होता क्या है. बहुत दफा कैंडिडेट्स जो होते हैं एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते, सो वी थॉट वी शुड डिस्कस कि एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से एक एम्प्लॉयर एक सीवी के अंदर क्या देखता है. प्लस बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द फॉर्मेट एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीवी, and after structure and the format, what is the content we need to be add in it. Last but not the least, beating ATS. So we will discuss ATS, जो majority of candidates को नहीं पता, और nowadays it's is using by different multiple companies. So Ms. Mudasra, आपके पर्सपेक्टिव से एक ऑब्जेक्टिव, जो एक सीवी का ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सीवी. बिकॉज हम लोग जब फ्रेश थे, ठीक है, जब हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, तो वी वर थ्रोइंग आवर सीवीज इन एवरी पोजीशन इन एवरी कंपनी विदाउट थिंकिंग कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीवी और वो हमें किस तरह एक इंटरव्यू की टेबल तक लेके जाएगा. Over to you, Ms. Mudasra. I think she's stuck. Let me connect her. Meanwhile, Ms. Mudasra ज्वाइन कर लेती है, दोबारा कनेक्ट कर लेती हैं. ओके, तो व्हाट शुड बी अ पर्सपेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रेज्यूमे. ठीक है, तो हाउ किस तरह एक सीवी जो है आपको गेज करता है एक एम्प्लॉयर को, एक रिक्रूटर को. तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई थिंक जब आप एक सीवी डाल रहे होते हो तो वी शुड कस्टमाइज इन अ वे के एम्प्लॉयर जो रिक्रूट कर रहा है, ही शुड सिलेक्ट फॉर दैट पोजीशन एटलीस्ट फॉर द इंटरव्यू. सो मीनवाइल जो इंटरव्यूज प्लस मिस मुदस्रा जैसे ही हमें ज्वाइन करेंगी दोबारा, तो शी विल गाइड फर्दर फॉर दिस. मीनवाइल हम उनसे फर्दर चीजें पूछेंगे फ्रॉम एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव एज वेल. So Ms. Mudasra, are we audible for you? ओके, जब तक मिस मुदस्रा हमें कनेक्ट करती हैं, आई वांट टू नो अबाउट माय ऑडियंस. वी हैव अ पूल क्वेश्चंस फॉर यू, सो हम 5 मिनट वेट करेंगे फॉर दिस. सो दिस इज अ क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑडियंस काइंडली आप पूल कर दिएगा कि आई वांट टू नो अबाउट यू कि आप में से कितने कैंडिडेट्स या कितनी ऑडियंस ने सीरीज बनाई है, और देन आफ्टर द 15 सेकेंड्स हम दूसरा क्वेश्चन आएंगे. So 93%. So 94% जो ऑडियंस हैं उन्होंने सीवी क्रिएट की है. थैंक्स, इट्स अ गुड रेशियो. So then we have our
सेकंड क्वेश्चन, आप में से जिसे चूज करना है प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आई वांट टू नो कि आप में से जितने भी ऑडियंस हैं उनका बैकग्राउंड क्या है. सो वी विल कंटिन्यू आवर सेशन अकॉर्डिंग टू दिस. So it's going good. Ratio. Fresh graduates and young professionals are 50-50. Great. So it's a good ratio. जो fresh grads हैं, we have 31% and young professionals are also 31%. So we have a 50-50% ratio of fresh graduates or young individuals. Thank you, everyone. So Ms. Mudasra, I'm audible for you? I think net connectivity का issue है. Assalamualaikum, Ms. Mudasra, am I audible for you? I am. I lost you in the meeting. Can you come again with the question? Sorry, I lost it 5 of your minutes. My internet was weak. No issue, Ms. Vidasra. So my question was कि जब हम fresh graduate होते हैं तो we apply on multiple against multiple position, ठीक है. So हम लोग same CV. When I was fresh graduate तो मैं भी same CV जो थी for different position के लिए same CV हर जगह throw करती थी. So I just want to know कि आप मुझे और मेरी audience को guide करें कि what is the objective of a CV or how much it is important. Because writing a proper resume is very important for any of the candidate applying for position. Or CV is actually a reflection कि आप क्या हैं and what you can deliver to any organization in future. And it's very important कि आप उसे properly draft करें and properly craft करें, which is essential for any candidate to land into the job interview. So if you talk about writing an objective, if you want me to talk about writing an objective in the CV, so objective. Okay, go ahead. So you were discussing the drafting a proper CV. Drafting a proper CV is required at every level, चाहे वो आप fresh graduate हैं, चाहे आप professional हैं. CV properly draft होगी, and what I mean by properly drafting a CV, उसका structure ठीक हो, उसकी language ठीक हो, or you have written the essential details in resume. That's the required thing for any of candidate to land into the interview. Great. That's necessary. Okay. So Ms. Vidasra, being an employer, ठीक है, और as a recruiter, I know कि आपने different level की position जो है fill की है, different 5 से 6 साल तक का recruitment आपने की है. So being an employer and recruiter, जब आप किसी CV को screen कर रहे हो, तो CV को review कर रहे हो, तो आप क्या find out कर रहे हो तो CV से? One, what he had done so far, if that's an experienced candidate. Okay. दूसरी चीज सीवी उसकी काफी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, ज्यादा वर्बोसिटी ना हो. ही शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर क्या उसकी एजुकेशन है, व्हाट ही हैज अचीव्ड सो फार, स्किल सेट क्या है, इंटरेस्ट क्या है. दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर एनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू लुक फॉर व्हाइल हायरिंग. ठीक है. सो हाउ यू डिटेक्ट किसी भी कैंडिडेट की सीरियसनेस आप कैसे डिटेक्ट करते हैं? बहुत सारी सीरीज मेरे पास ऐसी आती हैं सिद्रा, जिसमें क्लटर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, टू मच इन्फॉर्मेशन, एंड इट्स नॉट राइट टू फाइंड आउट कि वो बताना क्या चाह रहे हैं, व्हाट शुड बी कम आउट ऑफ सीवी. अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. बहुत सारी एक एग्जांपल मुझे याद है. आई डोंट वांट टू टेक इट पर्सनल बाय एनी ऑफ द कैंडिडेट. वो तुम्हारे साथ ही आई थी मेरे, नहीं, यू वर नॉट विद मी. आई रिसीव्ड द रेज्यूमे जिस पे उसने ही अप्लाइड फॉर सम पोजीशन, एंड उस पर उसने लिखा हुआ था कि आई हैव डन मास्टर्स
If you will not select me, that's not the end of it for me. I'll go for PSC. Because when you apply for a position, you need to pitch that you are able to get that job. वो pitching कैसे होती है? Pitching ऐसे होती है कि आप specific job के लिए apply कर रहे हैं, तो CV should be Okay. customized. Okay. Not one single CV for all the position. वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. So that's important कि आप बहुत precisely, seriously, professionally अपनी CV draft करें. For maybe new hires या maybe जो जिनका experience नहीं है, they should CV should not exceed a page. वो अगर 3-4 pages पे बनी हुई है, जिसमें I take a lot of time to scroll down to find the right information जो मुझे मिल नहीं रही, वो मुश्किल है. So 4-5 component हैं जो CV के अंदर हर हाल में होने चाहिए. One is education, experience, interest, और अगर कोई बहुत ही अच्छी achievement है, तो उसको achievement सारी लिखनी चाहिए in the CV. So Ms. Mudassira, how much a person chronology is important in a CV? Sorry, can you ask me again? You are not audible to me. Okay, so my question was how much a person's chronology is important in a CV? Chronological order. Chronological order is important while writing the CV. होता ये है कि it's easy to find out कि उसने suppose if I'm going to give an interview anywhere, कहीं भी जाती हूँ, तो जो बंदा मुझे इंटरव्यू कर रहा होगा उसको ये आइडिया होना चाहिए कि मैं करंटली कहाँ काम कर रही हूँ, उससे पहले कहाँ काम किया, वरना होगा ये इट विल बी हार्ड फॉर अ पर्सन टू कीप ऑन ट्रेसिंग कि ये था कहाँ, कैसे हुआ, और फिर वो इरिटेट हो जाएगा, वो कहेगा कि वेयर शुड आई फाइंड आउट कि आप कर क्या रहे थे, कैसे कर रहे थे. तो chronological order is important, but gaps are not important for me. इसका मतलब है कि आपने लिख दिया कि अब मैंने 2019 से 2020 तक काम किया, उसके बीच में आप कहते हैं मैंने 2018 से 19 तक काम नहीं किया. I don't care about that. लेकिन that should be in the chronological order. Okay, so what is the basic structure जो एक resume का होना चाहिए? What should be the ideal structure of a resume? जो major components हैं हमें cover करने चाहिए, like personal information होनी चाहिए, objective summary, education, experience, skills and interest. क्या इसके अलावा भी कुछ major होता है जो candidates को डालना चाहिए? देखो, personal information, professional summary is optional for me. Education, experience and personal information may be only their name, email address, LinkedIn link, contact number and the city where they are based on. That's optional for me. It doesn't matter where they are based. बट बहुत सारे रिक्रूटर के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है कि वो देख सकें वो काम करें या नहीं करें, क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस में लोग रिलोकेट होना नहीं पसंद करते. ठीक है, बट वो डिपेंड कर रहा होता है पोजीशंस की रिक्वायरमेंट पे. हाँ, वो उस पे डिपेंड कर रहा होता है मेजरली. देखो, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. अभी मैंने एक पोजीशन पोस्ट की, दैट पोजीशन वाज बेस्ड इन जीटी रोड, मींस गुजरावाला, गुजरात, एनीवेयर. उस पे मैंने पोस्ट करते हुए लिख दिया क्लियरली कि this position is based in this area. If any person living any other city can write that they can be able to relocate. So that's how custom advertisement and custom CVs work. Essentially, address most of the time it does not matter. लेकिन city लिखना it's important ताकि बहुत सारे candidate भी relocate नहीं होना चाहते. और बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने कॉल की है फॉर एनी स्पेसिफिक पोजीशन, तो वो कहते हैं नहीं वी आर नॉट विलिंग टू वर्क हियर, सॉरी वो बहुत दूर है हमारे घर से. तो इट्स अ टू वे प्रोसेस, कोई भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है. ठीक है, सो व्हाट इज द मेजर पर्सनल इंफॉर्मेशन एज इन पर्सन मेजर कंपोनेंट जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो आप सजेस्ट करते हो कि ये 5 चीजें, ये 4 चीजें पर्सनल इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए? नेम, मोबाइल नंबर, email address, right, LinkedIn address, yes, city if required, and father name की जरूरत नहीं है, या फिर अगर आप लिख देते हैं तो it doesn't matter, that's enough. So there are just people hold on, I need Siddha just a minute. Okay, so हम लोगों को पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर 3 से 4 चीजें, 5 चीजें डालनी चाहिए. 1, आपका नाम,
ठीक है, योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, योर ईमेल आईडी विच शुड बी प्रोफेशनल एंड योर लिंक्डइन डिटेल्स प्लस सिटी। अगर विद इन अ सिटी और आपको लगता है कि आपकी जो पोजीशन के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हो और वो आपके घर के करीब है, तो आप सिटी के साथ अपनी वो छोटा सा टाउन एरिया डाल सकते हो। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एक अगर मुझे मॉडल में एक जॉब मिली है, सो आई एम लिविंग नियर टू दिस, सो मैं जेटी डाल दूंगी, जोहर टाउन डाल दूंगी। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। सो मिस मुदस्सरा, अभी तक का बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोफेशनल ईमेल आईडीज नहीं डालते हैं, तो अभी तक का आपका फनीएस्ट ईमेल आईडी क्या रहा है जो आपने एक्सपीरियंस किया? There were many actually, not one. जैसे कोई लिखता है स्वीट प्रिंसेस, कोई लिखता है कि स्वीट चिली, कुछ लिखता है फ्रूटफुली। अच्छा, कुछ लोग भेज देते हैं .net या फिर वो जो कैफे से होती है ना सीवीज। आई डोंट माइंड कि लोग कैफे से सीवी भेजें, लेकिन इफ दे हैव अ प्रॉपर सब्जेक्ट, so that attract a lot of attention of readers. Yeah, but email should be professional. हाँ, बहुत सारी जो सीरीज होती है ना, वो क्या होता है, वो बस ऐसे ही भेज देते हैं विदाउट एनी सब्जेक्ट, विदाउट एनी प्रॉपर बॉडी। अब उनको लगता है कि दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट भी है ना, अ प्रॉपरली क्राफ्टेड सीवी एंड अ प्रॉपरली क्राफ्टेड ईमेल, और अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी उसके अंदर आपको जो कवर लेटर है उसके अंदर लिखना चाहिए कि व्हाट्स योर इंटरेस्ट, व्हाई वी शुड सिलेक्ट यू। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक कि एक जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके अंदर हम क्या चीजें ऐड करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग अपना ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, वो इन पैराग्राफ में 4-4 5-5 लाइनें होती हैं। डू यू थिंक एक रिक्रूटर को 5 लाइनें 4 लाइनें अट्रैक्ट करती हैं? बहुत दफा ना ऑब्जेक्टिव के अंदर वो सेम ही लाइनें लिखी होती हैं, एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक, डेडिकेटेड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हर प्रोफेशनल समरी के अंदर लिखे होते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल समरी लिखें, लेकिन अगर आप लिखें तो लिखें क्या? लिखें व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट and what you want to do in future. Second thing is what are the skills which you can sell. Third thing is आपका गोल क्या है। बाकी सारी चीजें तो आप ऑलरेडी कवर कर रहे हैं कि एजुकेशन है उसके अंदर और एक्सपीरियंस है उसके अंदर। So it should be 1 to 2 lines, right? It's just 2 lines is enough for a professional summary. So the third is the most major important part is education. So there are people जो कि अपनी एजुकेशन को सही कैश नहीं कर पाते मार्केट में, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जो सीवीज में अपना जो एजुकेशन पार्ट है वो अपने प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट कर रहे होते हैं और समटाइम्स उसकी ड्यूरेशन भी नहीं लिखते। तो व्हाट यू सजेस्ट कि एजुकेशन वाले पार्ट को कैसे? ड्यूरेशन लिखना इज एसेंशियल। ड्यूरेशन लिख के मुझे आइडिया ये होगा दैट how much time you have taken to complete that education, one, क्योंकि हर कोई एक गो में नहीं complete कर पाता एजुकेशन। दूसरी बात ये कि इवन अगर कोई गैप्स आए हैं in that education, there can be personal reason and professional reasons both, and can be other reasons as well. So here wise लिखना is required, and in the order, writing it in an order that is required to. So what if there are candidates जो कि अपना GPA नहीं डालना चाहते और कुछ GPA डालते हैं, तो GPA do you think is mandatory? नहीं डालना चाहते और yes GPA CGPA is, do you think CGPA is important? अच्छा, CGPA, yes, so it's not only criteria to hire any candidate. मैंने बहुत सारे candidate देखे हैं with 3 CGPA but they don't have that knowledge and skill set. But कुछ होते हैं जो 2 point something GPA पे भी होते हैं, but they are too quick and bring results in the organization. लिख देना is good. कुछ कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं कि वो 3 below GPA पे हायर नहीं करते, तो ये रिक्रूटर को फायदा होता है, वो फिर पहले ही सोच लेता है to whom to select and to whom not to. By the way, most of the cases में ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के अंदर ही फिल्टर लगे हुए होते हैं कि अगर उनकी पॉलिसी है कि 3 GPA and above हायर करेंगे, तो whosoever write down कि वो 3 CGPA below and the system automatically reject them. बिल्कुल ठीक है। But तो मिस that is मुदस्सर, डू यू थिंक good. जो आपका प्राइमरी एजुकेशन होता है, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है, क्या वो हमें डालनी चाहिए? नहीं, क्योंकि जब आपकी हायर एजुकेशन आ जाती है और आपकी सेकेंडरी एजुकेशन आ जाती है तो क्या that's not जरूरत होती है required. प्राइमरी एजुकेशन की ऐसा जरूरत नहीं है। इफ यू आर बैचलर्स एंड मास्टर्स तब तो आप ना जाए वो सेकेंडरी एजुकेशन या फिर HSSC या O levels या A levels पे। अगर आप हैं ही
सिर्फ वो HSSC या SSC लेवल के, जिसका मतलब है इंटरमीडिएट, O levels, A levels के इक्वल हैं, तो फिर तो दोनों डालें। अगर बैचलर्स और मास्टर दोनों किया हुआ है, देन मास्टर्स एंड बैचलर्स आर इनफ फॉर एनी रिज्यूमे, अदरवाइज वो स्पेस लेगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हाँ मांगती हैं रिक्वायरमेंट कि आपकी इतना क्राइटेरिया फॉर मास्टर्स, इतना क्राइटेरिया फॉर BBA, इतना क्राइटेरिया फॉर मैट्रिक, लेकिन वो सिर्फ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें यूजुअली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉट एक्सेप्टेड। राइट, बिल्कुल। सो मतलब एजुकेशन के अंदर आपको अपनी हायर एजुकेशन डालनी चाहिए, सेकेंडरी डाल देनी चाहिए, एंड CGPA इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मेंशन ऑन योर CV, प्लस इट शुड बी मेंशन इन अ अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑटोमेटिक सिस्टम्स है ना फॉर हायरिंग, देन वो मैंने आपको बता दिया कि आपको CGPA पे डालनी पड़ती है हर हाल में। राइट, प्लस मिस मुदस्सर, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्सपीरियंस। जब आप फ्रेश ग्रेजुएट होते हो, ठीक है, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, सो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग तो फ्रेश हैं, ठीक है, हम एज एन एक्सपीरियंस क्या डालें तो कंपनी को अट्रैक्ट करेंगे, तो व्हाट दे शुड ऐड एक्सपीरियंस नहीं इन होता, देयर 2-3 एक्सपीरियंस चीजें पार्ट। होती हैं। वन इज इंटर्नशिप, कि उन्होंने इंटर्नशिप कहाँ पे की है एंड व्हाट दे हैव अचीव्ड इन इंटर्नशिप। अगर इंटर्नशिप भी नहीं की, जो कि बहुत सारी डिग्री के केसेस में इंटर्नशिप भी रिक्वायर्ड नहीं होती, जैसे डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती इंटर्नशिप की, या टेक्निकल हायरिंग जो होती है इलेक्ट्रिकल में, उधर इंटर्नशिप की जरूरत होती है। उसमें वो अपनी अचीवमेंट लिख सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट उन्होंने क्या अचीव किया। सो वो ज़रूर रिक्वायर्ड है in terms of hiring for a fresh candidate. What I'm suggesting is कि आप अपनी achievement लिख दें और इन projects बेस्ट प्रोजेक्ट लिख दें जिसमें आपने बेस्ट परफॉर्म किया। थर्ड थिंग, अगर इंटर्नशिप है इंटर्नशिप लिख दें, क्योंकि जब हम फ्रेश कैंडिडेट को हायर कर रहे होते हैं ना, वी लुक फॉर कैंडिडेट जिसने एटलीस्ट कोई अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर किया हो, या उसकी कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो apart from the study, या फिर where he spend his time in the year, वो सब होना I think राइट, तो it's क्या उसको लिस्ट डाउन अपने सारे प्रोजेक्ट्स कर देने चाहिए या सिर्फ स्पेसिफिक और रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स करने चाहिए? specific और relevant projects करें। if you take fresh graduate CV to 2 pages, that's not mandatory कि वो सारे के सारे projects लिखना शुरू कर दें। it's better कि वो specific related to job लिखे। वैसे I don't suggest कि आप standard CV use करें even for the fresh graduates too। अगर वो एक कभी सेल्स पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो उसको कस्टमाइज कर दे विद द प्रोजेक्ट्स जो उसने सेल्स के अंदर किए हैं। अगर वो HR की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो उसको कस्टमाइज कर दे उन प्रोजेक्ट से जो उसने HR में किए। सो लिस्ट डाउन करे प्रोजेक्ट्स रेलेवेंट टू पोजीशन। ये मैं सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट की बात कर रही हूँ, लेकिन 3-4 लिखना इज इनफ सो दैट उसकी CV एक ही पेज पे रहे। ठीक है। ऑल्सो टेक्निकल एरियाज में अगर जो प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैं HR की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, सो इट्स एन HR MDO, तो आई शुड ऐड, आई थिंक कि जो मैंने HR में के रिलेटेड कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट किया, दैट कैन बी अ प्लस पॉइंट। हाँ, that can be a plus point. Or if a person has worked in organizational behavior project या किसी और भी project में, so that's a plus point too. अच्छा, we have one question from our audience side. जो question है अफीफा मुआज की साइड से है। She said कि don't you think it's inappropriate to only add university, or are recruiters interested in QA levels etc to be specified? Sorry. So मुझे लगता है अफीफा, so अफीफा का एक question है from this related कि don't you think it's inappropriate to add, ठीक है, but or are recruiter interested? Yes, आई थिंक अफीफा हम लोगों को यूनिवर्सिटी के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी ऐड करनी चाहिए, दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर अस। और प्लस जो हमारा बैकग्राउंड है, अगर हम बैचलर ऑफ साइंसेज या BBA कर रहे हैं तो इट शुड बी रिटन ऑनर CV कि हम लोगों ने BBA किया है, इट्स एन ऑनर, ठीक है, और उसकी स्पेशलाइजेशन नीचे ब्रैकेट में होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऐड करना इज एसेंशियल, तो उसका कंसर्न राइट है। अगर आप डिग्री ऐड कर रहे हैं तो यूजुअली ये जो फॉर्मेट यू आर शोइंग उसमें होता ही है कि डिग्री इज अबव एंड यूनिवर्सिटी इज डाउन।
So यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई करना इज एसेंशियल टू, सो दैट बहुत सारी जगहों पे आइडिया हो जाता है कि किस लेवल का क्वालिटी कैंडिडेट होगा. We are not rejecting anyone based on the university, क्योंकि resume tell us कि whether candidate is professional to hire from any position or not. But one thing is, she is saying that university that writing is required and that's essential. वो usually हर कोई लिखता भी है कि मैंने यहाँ से पढ़ा है, इस साल में पढ़ा. Yes. बिल्कुल, अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो यू कैन कैश यूनिवर्सिटी एज वेल. ठीक है. सो दे आर पीपल जिन्हें स्किल्स और इंटरेस्ट वाला जो पार्ट आता है सीवी में उसको सीरियस नहीं लेते. सो दे ऐड स्किल्स इररिलेवेंट और इंटरेस्ट में डिफरेंट डाल देते हैं. तो आई जस्ट वांट कि आप काइंडली हमें गाइड करें कि स्किल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स हमें किस तरह ऐड करने चाहिए और हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट टू ऐड बोथ स्किल्स एंड इंटरेस्ट. सो अगर ये हम दोनों चीजें डालते हैं तो व्हाट अ रिक्रूटर थिंक अबाउट अवरसेल्फ. देखो 4-5 स्किल्स मुझे क्लियर करनी चाहिए. Technical skills, one is behavioral skills, third is something which you had done on any software, previously or now. तो वो सारी स्किल्स ऐड करना इज एसेंशियल. अब टेक्निकल स्किल से मेरा क्या मतलब है, अगर आप सपोज आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो शायद, और फ्रेश ग्रेजुएट है तो शायद आप उस टेक्निकल स्किल में ये डाल देंगे कि मैंने सोलर सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया. उसके अगेंस्ट जो आपने टूल्स यूज किए होंगे वो उसके अंदर डाल सकते हैं. हो सकता है उसके लिए आपने कोई टेक्निकल सॉफ्टवेयर यूज किया हो, तो उस टेक्निकल सॉफ्टवेयर को आप सॉफ्टवेयर स्किल्स में कवर करेंगे. जब मैं बात करती हूँ बिहेवियरल स्किल्स की, तो वो कुछ इस तरह की स्किल्स होती हैं जैसे आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस, that's your soft skill, and I can speak well, that's your interpersonal skill. I can convince people well, that's your interpersonal skill. So 3-4 किस्म की skills डाल देनी चाहिए. One is technical, second is software skills, and third is your behavioral skills. ठीक है. सो हमें इंटरेस्ट क्या डालना चाहिए? फॉर इंस्टेंस अगर आई थिंक कि जब हम इंटरेस्ट की बात करें तो वी शुड ऐड इंटरेस्ट जो कि हमारी उस पोजीशन से रेलिवेंट. फॉर इंस्टेंस अगर हम, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग इट, बट हाँ दिस कैन बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू. जब हम फॉर इंस्टेंस अगर एक मार्केटिंग की पोजीशन आई है और उसकी रिक्वायरमेंट थी आपकी ट्रैवल किया, तो यू कैन ऐड इंटरेस्ट ट्रैवलिंग. बट लेकिन हाँ अगर आपने ट्रैवल किया तो यू नीड टू बी जस्टिफाई. अगर रिक्रूटर पूछता है तो ट्रैवल इंटरेस्ट डाल देना चाहिए. फॉर फ्रेश ग्रेजुएट मैंने बहुत इंटरव्यूज लिए. फ्रेश ग्रेजुएट से बात करते हुए ना, वी नीड टू हैव अ पॉइंट, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं होता. तो मेजरली वी टॉक अबाउट व्हाट यू हैव स्टार्टेड, व्हाट वाज योर बेस्ट प्रोजेक्ट, व्हाट डू यू डू इन योर आइडल टाइम, व्हाट इज योर इंटरेस्ट. बहुत सारे लोगों की मैंने बहुत इंटरेस्ट भी सुने हैं. कुछ पेंटिंग करते थे, कुछ कार्ड्स यूज करते थे, बहुत सारे लड़के कुकिंग करते हैं आजकल. तो दैट्स इंटरेस्टिंग टू. तो डालना चाहिए so that we can have 2 parts of interview. One is technical evaluation, other is behavioral evaluation. क्योंकि जब आप एज HR बैठे होते हैं, behavioral evaluation कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि what are the interest, how that fit into the organization. यस. और फॉर मी अगर एज अ रिक्रूटर देखूं तो फॉर मी अगर किसी ने अपना इंटरेस्ट डाला है, फॉर एग्जांपल इज गोइंग के फिटनेस पे जिम जाता हूँ, समथिंग लाइक दिस, स्विमिंग पसंद है, आई लाइक बैडमिंटन या कुछ खेलना, दैट मीन्स दैट पर्सन हैज अ लाइफ और वो फ्रॉम दिस वर्किंग लाइफ से अलग इसकी देयर इज सम पर्सनल लाइफ एज वेल. हाँ, that's interesting. डालना चाहिए मुझे लगता है. प्लस ऑल्सो जो स्किल्स होते हैं, अगर फॉर इंस्टेंस कुछ टेक्निकल्स और जो टेक की साइड के जो कैंडिडेट्स होते हैं, अगर वो स्किल्स अपनी डालते हैं, फॉर इंस्टेंस वो किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, दैट इज फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर द वेब डेवलपर पोजीशन है, तो उसके अगेंस्ट जो आपके जो स्किल्स होते हैं जो अगर आप ऐड करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, लाइक C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, तो यू कैन ऐड दिस थिंग्स. हाँ, yes, you are right. Right. So Miss Mudasra, after structure के बाद most important thing होती है content, कि what content we need to add जो कि relevant हो और plus और attractive हो, जो कि gauge कर सके एक employer के attention को. अच्छा, content in term of what? Content in term of what you are writing inside the CV, ये पूछना चाहिए. Yes. अच्छा, so what content should a CV have? वो मैंने तुम्हें बता दिया. One is personal information, second is education, third is your experience if any,
fourth is your personal interest and personal interest, fifth is your skill, sixth is optional but लिखा होता है बहुत सारे लोगों ने, is references. Right, but there are Optional people है ना भी लिखें तो that's not essential. राइट सो दे आर पीपल जिन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में अपने जो कंटेंट होता है डाला होता है कि आप जब आप फॉर इंस्टेंस आपके पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन आई है वो पैराग्राफ में वर्बोसिटी हो जाती है, वो इतना क्लटर हो जाती है इंफॉर्मेशन के मोस्ट ऑफ द टाइम उस सीवी को पढ़ने में इतना टाइम लगता है. जस्ट लेट मी टेल यू, एक सीवी के विजुअल को गैप करने के लिए जस्ट टेक मे बी 10 सेकेंड, वो भी बहुत ज्यादा है. अगर वो इतनी ज्यादा वर्बोसिटी है लाइंस की और लाइंस बहुत ज्यादा है या फिर इस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं which is maybe not kind of his Relevant words or or- her words or Yes. irrelevant है या Yes. लाइंस इतनी लंबी की हुई है which are not essential, वो that's not required. आप बुलेट पॉइंट ऐड करें, एक दो essential, उससे ज्यादा. और एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, एक कैंडिडेट का मैंने इंटरव्यू किया, उसने 2 या 3 लाइंस काफी लंबी डाली हुई थी इनसाइड हिज रोल. अच्छा, अब जब मैंने ओके उससे पूछा ना कि ये क्या क्या था और क्या किया, ही वाज ब्लैंक. कहता अच्छा ये भी लिखा हुआ है सीवी में. तो ऐसा भी होता है. देयर आर कैंडिडेट्स जो कि अपनी सीवी किसी से बनवा लेते हैं, दे आर कंपनी. सीवी पढ़ के आनी चाहिए. बहुत दफा कैंडिडेट को ये भी नहीं पता होता कि सीवी के अंदर लिखा गया है. एग्जैक्टली सो प्लस मुझे लगता है कैंडिडेट्स को अपनी सीवी अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो पैराग्राफ लिखते हैं उसे 1 to 2 लाइन स्टेटमेंट में Bullets खत्म कर कर दें दें. उसे. प्लस दे कैन ऐड नंबर्स हाँ या बस प्लस दे कैन ऐड नंबर्स कि अगर आपने कोई हाँ. काम किया या कोई प्रोजेक्ट किया तो उसका मोटिव क्या था, ठीक है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या थी, कितने लोगों को इम्पैक्ट हुआ. यू कैन ऐड दिस थिंग्स, वी शुड टॉक अबाउट इन नंबर्स. ठीक है. सो व्हेन अ पर्सन मिस मुदस्रा इज एडिंग देयर अकम्प्लिशमेंट डाल रहा होता है तो व्हाट 3 to 4 थिंग्स दे नीड टू बी ऐड और रिमाइंड के हाँ मुझे इस अचीवमेंट के लिए डालने से पहले मुझे अपने आप को थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेनी चाहिए ताकि आई कैन ऐड दिस थिंग्स इन दिस सीवी. Accomplishment में you need to write के how, what, where and what result that thing has bring into the system. इसका मतलब है Yes. मुझे क्या टास्क दिया था, मे बी मुझे कोई काम दिया हो या कोई प्रोजेक्ट दिया हो एंड आई ओवर डिलीवर्ड दैट प्रोजेक्ट. अब ओवर डिलीवर करने के बाद यकीनन मैंने उसे अकम्प्लिश किया, रिजल्ट दिए, तो वो लिखना चाहिए. अब जैसे मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हायरिंग की एग्जांपल दे रही थी इन अ प्रोजेक्ट, अगर उसे सक्सेसफुली डेवलप कर दिया सोलर सिस्टम, यू कैन राइट इट डाउन क्या the project has been successfully delivered for solar system including these technical skills. Right. So Ms. Mudasra, we have questions जो कि काफी इंटरेस्टिंग है. तो बकार मेहदी ने पूछा है, can we use CV template from online website? Can we use the CV template for? From online website से हम लोग अपनी CV बना सकते हैं. Can we use that template? Online बना ले. I use online. I shortlisted many candidates जिनके online CVs भी होते हैं, तो that's okay. They can use it. लेकिन वो यूजुअली अगर ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर अपलोड हो रहे हैं ना, तो उसकी ट्रैकिंग करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर वो अपलोड कर रहे हैं उस सीवी को, वो ट्रैकिंग थोड़ी सी मुश्किल है फिर एज एन एम्प्लॉयर. बेहतर ये कि आप थोड़े बहुत आइकॉन्स और इन्फोग्राफिक्स यूज करके खुद ही सीवी बना लें वर्ड में. Exactly. Plus मुझे लगता है जब आप खुद CV बना रहे हो तो you will be able to describe it कि आपने लिखा क्या है. हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी सीवीज और जो ऑनलाइन देखी है ना, उसमें दे यूज अ लॉट ऑफ चार्ट्स. अब वो क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अगर किसी ने लिखा है उसके अगेंस्ट एक चार्ट बना देते हैं वो, और उसके अंदर वो लिखता है कि आई एम 80% efficient in Microsoft Office. What is the criteria to gauge that 100%? वो तो आप खुद अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं. Yes, I agree with this. One, we have 2 more questions. कि एक question है, what if interest or some skills are contrary or irrelevant to the degree? Sorry, क्या कह रही हो? अगर हमारे जो skills हैं and are contrary or irrelevant to the degree, so do they need to add it? Irrelevant to the job? Yes, irrelevant to the degree, not the job, to the degree. हाँ, they can be used as their interest. That will be a plus.
Yes. That can be their additional benefit sometimes. Yeah, agree. So we can add more skills जो कि हमारी डिग्री से relevant नहीं होते. That can be benefit for you. So we have one more question. एक question है, but if I have no internship or job experience और मेरी डिग्री अभी खत्म हुई है, तो how would my CV would be like to be presentable and eye-catching for the recruiter? Sorry, मैं उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और उसकी डिग्री अभी खत्म हुई है, so Yes, वो चाहती है कि उसकी CV जो है presentable और eye-catching हो for a recruiter. The thing I said, don't go for verbosity. Second thing is be precise, be professional. In terms of writing your email address, वो fancy type नहीं use करें. Also, थोड़ी सी catchy हो. मुझे I like a bit of icons and infographics used. But since अगर online tracking system है, वहाँ पे आप मत use करें infographics. So be precise, be professional while writing. Write in bullets, and a short one-page CV can land you into it. By the way, with the template which is shown here is very precise. So अगर इसी format में a person can make after customization with respect to position, that's a good template too. Okay. So Ms. Mudassar, what are the do's and don'ts we need to be remember when we are writing a resume? So One thing I said that we should write in a bullet point. So that bullet should be relevant and duration should be there. अगर आप काम करें तो आप उस पोजीशन को भी लिखें इन प्रेजेंट टेंस. उससे पहले कहीं इंटर्नशिप की है, सपोज मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मैंने 2 साल पहले इंटर्नशिप की है, उसको मैं पास्ट टेंस में लिखूंगी दैट वर्क एट दिस XYZ कंपनी एंड हियर दिस. उसके नीचे मैं अगर अपना कोई एक प्रोजेक्ट लिखना चाह रही हूँ, मैं वो सिर्फ बुलेट में लिखूंगी. यूजुअली लेंथ जो है वो 2 पेज से ऊपर आई प्रेफर कि फ्रेश कैंडिडेट की 1 पेज रहे. हाँ, जो 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के कैंडिडेट्स हैं, इवन फॉर द 4 years आई प्रेफर 1 पेज ही रहे. जो 6 to 7 years experience है, 6 to 7 year and above till 15 year, they can use 2 page, that is enough. उसके बाद वो प्रॉपर प्रोफाइल सेंड होती हैं जो कि अपर लेवल पोजीशन होती है. अच्छा, कीवर्ड्स का यूज करना चाहिए. So keywords usually बहुत, हाँ बताओ. So there are वैसे ऐसे बहुत सी सीवीज होते हैं जिन्होंने अपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है उसको प्रेजेंट टेंस में कवर किया हुआ होता है. जो अपनी जे वर्किंग दिस वर्किंग दिस हैंडलिंग दिस जो कि यूजुअली जो कि होना पास्ट टेंस में चाहिए और वी विल नीड टू बी फोकस्ड ऑन आवर करंट पोजीशन और करंट जेडी. And you are right, that should be in the present tense. That's a bit of mistake, I think. So how much keywords are important for a person? Keywords are important nowadays a lot क्योंकि बहुत सारे आप में से बहुत सारे होंगे जो कि रोजी के थ्रू अप्लाई कर रहे होंगे. रोजी में जब आप जेडी डालते हैं तो वो कीवर्ड से सर्च करता है कि कौन सी प्रोफाइल मैच हो रही है कीवर्ड्स के साथ और फिर वो उसको फिल्टर करके एनालिसिस दे देता है. सो दे आर इम्पोर्टेंट. इसी तरह बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं दे ऑनलाइन एप्लीकेशन based tracking system. So yes, we will discuss it later. हाँ, उस और जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं उन कंपनीज के जिनमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसमें इट्स रिक्वायर्ड दैट यू डोंट यूज टू मच ऑफ ग्राफिक्स क्योंकि वो सिर्फ टेक्स्ट ले रहा होता है. वो टेक्स्ट लेके उसको क्रॉस मैच कर रहा होता है उस एडवर्टाइज पोजीशन की जेडी से और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रोफाइल आर रेलिवेंट फॉर दिस पोजीशन और नॉट. अच्छा, one thing is बताएं इन दोनों केसेस को आप को स्पेसिफिक कोशिश करें कि यू राइट द कीवर्ड्स जेडी पढ़ने के बाद. राइट. सो देयर आर पीपल जो कि अपनी सीवी में बहुत सारी ऐसी चीजें लिख देते हैं जो उन्होंने की नहीं होती और जब वो इंटरव्यू तक जाते हैं तो वो उधर जाके रिजॉल्व हो जाते हैं कि नहीं वो जो एक पूरा परसेप्शन जाता है कि यार दिस पर्सन हैज लाइड टू दिस एंड ये गलत फॉल्स लिखते हैं. तो डू यू थिंक कि तो आई थिंक कि जो हम लोग सीवी बनवा रहे होते हैं बाहर से, सो प्लीज डोंट ऐड फॉल्स थिंग इन इट कि जो आपने नहीं किया डोंट ऐड इट. ठीक है, don't lie about yourself. Yeah, you're right, but so I was on
Don't lie about yourself. So there are ATS system इसमें दस्ता बहुत सारे लोगों को ATS system के हवाले से नहीं पता होता, क्योंकि अब I have seen there are many companies जो कि ATS system use कर रही, they are developing in-house ERPs for the recruitment. Yes, there are companies we are developing in-house ERPs in the system. But sorry, I'm connecting with my charger. But there are few which I am asking you to apply to their email addresses. तो वहाँ तो that's not required कि आप जो मर्जी information करें, that's not essential. But अगर आप online apply करें through tracking system, then you need to be careful क्योंकि वो पे auto rejection पे चले जाते हैं, वो तो शायद CV goes nowhere. राइट. सो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो फॉन्ट होता है वो तो या तो बहुत छोटा रख देते हैं, ठीक है, जो कि रीडेबल नहीं होता, ठीक है, या तो बहुत फैंसी होता है. तो व्हाट डू यू थिंक कि एक फॉन्ट स्पेसिफिक क्या फॉन्ट होना चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए जो कि एटीएस सिस्टम पे डिटेक्ट कर ले, और जब आप किसी को ईमेल के थ्रू भी सीवी भेज रहे हो तो तब भी वो एक्सेप्टेबल हो? Font should be 11, which is enough, either a Times New Roman or Calvary. या दिस इज द Column, I recommend कि अगर आप ATS system के through apply कर रहे हैं, then don't add it. अगर आप email address के through add कर रहे हैं, send कर रहे हैं CV, column add कर दें. Usually my own CV has column, और मैं उसके अंदर column add करती हूँ. So but ATS system is not detecting columns, charts and detect graphics. नहीं करता. तो ATS सिस्टम में जब आप अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ कॉलम मत डालें. कलर्ड बैकग्राउंड भी ना डालें, कीप इट वाइट. द मोर प्लेन इट इज, द मोर सिंपल इट इज, इट्स फाइन. हाँ, अब मैं ये बता सकती हूँ, अगर आप फैशन डिजाइनर हायर कर रहे हैं और पोर्टफोलियो उसका आना है, वो कलर्ड पे आएगा बाय द वे. लेकिन व्हेन यू गो फॉर ATS सिस्टम, वहाँ पे मत कलर डालें. Charts, graphics and infographics, वो ATS सिस्टम में मत डालें. लेकिन अगर ईमेल के थ्रू अप्लाई करें, I use a bit of icon in my own resume too, but not for online tracking system. वहाँ नहीं डालें. राइट. सो बेसिकली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि कंपनीज एटीएस सिस्टम इस्तेमाल क्यों करती हैं, एटीएस सिस्टम होता क्या है, ठीक है. सो एटीएस सिस्टम बेसिकली एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए यूटिलाइज करती हैं. और आई जस्ट वांट टू नो कि एटीएस काम कैसे करता है और कंपनीज क्यों इसको इतना प्रेफर कर रही हैं नाउअडेज, स्पेशली रिक्रूटमेंट फर्म्स एज वेल. Actually, it's an artificial intelligence replacing human. कि इंसान का काम भी आसान करिए ना. हमने जेडी लिख दी और उस जेडी को कीवर्ड से मैच करेंगे व्हाट अ पर्सन इज डूइंग राइट नाउ, उस पोस्ट के अगेंस्ट सीवीज एक्सट्रैक्ट करेंगे और रिक्रूटर को दे देंगे. तो इट हेल्प्स आउट रिक्रूटर इन अ वे. एंड but there are few maybe other sides too which can be considered as area of improvement of ATS system. बहुत सारी शायद relevant resumes go out of the system too. That can be a scenario sometimes, but it's a good to use ATS system. And उसके लिए मुझे लगता है कि हमें अपनी ऑडियंस की नॉलेज बेस बढ़ाना जरूरी है, ताकि वो जब अप्लाई कर रहे हो उन्हें पता हो कि मेरी रीजन ऑफ रिजेक्शन, अगर आप रिजेक्ट होते हैं, वो क्या है. yes. ताकि वो ये ना कह सके कि अच्छा मुझे समझ नहीं आया रिजेक्ट क्यों हुआ. और मुझे ये भी लगता है कि एज HR हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, we inform them that why they are being rejected or anything. ठीक है. या थैंक यू. सो नाउ अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे. सो वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन इन आवर Q&A बॉक्स. सो मिस मुदस्सरा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन CV एंड resume can be used interchangeably? What do you think? Both have a different formats, so we use for the different styles. Yes. ठीक है. तो हम लोगों को दोनों चीजें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यूज करनी चाहिए. अगर आप किसी प्रोफेशनल किसी कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, देन यूज अ रेज्यूमे, ठीक है. और अगर आप किसी यू आर अ टीचर और समथिंग और एंकर हो, तो यू हैव लॉट ऑफ अचीवमेंट टू डिस्क्राइब इन इट. ठीक है, that's the right answer. ओके. हाँ,
how I can cover gap in a CV. Gap in terms of what? Gap in a CV. So I think most probably कि जो education के बाद 2 साल बाद job start करते हो या अच्छा, उससे ये हो सकता है कि education अगर में भी आप gap कोई आता है. स्पेसिफिक हॉबी करते रहे हैं आप वो लिख सकते हैं. अगर आप फ्रीलांसिंग करते रहे हैं आप वो लिख सकते हैं. बहुत सारे लोग पर्सनल रीजन की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाते. वो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं. लेकिन देखो, बट टू बी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द HR मैनेजर लुक फॉर गैप क्यों आया. बीइंग HR मैं नहीं देखती. आई जस्ट टेल Yeah. यू ऑनेस्टली, आई डोंट केयर कितना गैप आया कितना नहीं आया, क्योंकि एवरीवन हैज पर्सन लाइक टू. उसके में के उसमें भी इश्यूज हो सकते हैं. ही हैज अ राइट टू कम बैक टू इंडस्ट्री. अगर हम ही माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तो चेंज नहीं होगा. Right. So previously बट मैं लेकिन कुछ राइट दिन गैप, रीजन और गैप लिखने की जरूरत नहीं है. प्लीज वो सीवी में ना लिखिएगा. सीवी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाए, वो ऑटोमेटिकली खुद ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि गैप था कहाँ था. मैं अगर शॉर्टलिस्ट हो कल जाते हैं यूजुअली स्क्रीनिंग इंटरव्यू में पूछ ही लेता है HR का बंदा. What But the Miss reason Mudaswar, of the gap? nowadays trend is going to be changed. क्योंकि मैंने कल परसों लिंक्डइन की प्रोफाइल पे देख ली, there is a person जिसका 3 साल का गैप था और उसके पास शायद वैलिड रीजन भी होगा यकीनन, बट ही सेड कि मुझे ऑफर लेटर होगी ना, मेरा आज पहला दिन है, मुझे आई एम वंडर कि मुझसे मेरे 3 साल के गैप के हवाले से नहीं पूछा गया. So he went But to the that's what I'm recruiter. saying, that I don't look for a gap in for any candidate. I don't care about that. But CV Yes. बस chronological order में बनी हुई हो. बहुत सारी कंपनीज ये भी कर रही हैं कि I give you an example. यहाँ पे I think बहुत सारी फीमेल्स भी होंगी. They take a maternity gap. या फिर वो बीच में कहीं चली जाती हैं ड्यू टू देयर पर्सनल रीजन एंड कम बैक. उनके लिए बहुत सारी कंपनीज ने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट करके. तो कंपनीज आर चेंजिंग देयर ट्रेंड्स टू. लेकिन उसके लिए एक HR और कंपनी दोनों का माइंडसेट ओपन होना जरूरी है. Right. So we have one question for मोहम्मद अरीब. अरीब का सवाल है कि क्या CV इम्पोर्टेंट है या इंटरव्यू इम्पोर्टेंट है टू गेट अ जॉब? देखो, जब तक CV अट्रैक्टिव नहीं होगी, हाउ वुड यू गेट इनटू इंटरव्यू? दोनों इम्पोर्टेंट है. पहले यू मेक योर CV अट्रैक्टिव टू लैंड इनटू इंटरव्यू, एंड देन इंटरव्यू में आपकी सेलिंग स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए that you sell yourself, sell hard, and sell intelligently, and sell smartly. Right. दोनों इम्पोर्टेंट अगर है. अब बेसिकली फर्स्ट CV इम्पोर्टेंट है तो आप लैंड कर सकेंगे इंटरव्यू में. राइट, अगर किसी भी ऑडियंस में से किसी ने भी क्वेश्चन पूछना है और डायरेक्टली हमारे स्पीकर से पूछना चाहता है, सो सिर्फ रेज हैंड पे क्लिक करो, देन आई विल टेक यू इन आवर वेबिनार. सो यू विल बी एबल टू डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अ स्पीकर. अच्छा, देयर इज एनोनिमस क्वेश्चन फ्रॉम पर्सन कि अगर हमारा सेमेस्टर जो है लेट हो गया है, डिग्री लेट हो गई है, तो हाउ डू वी एक्सप्लेन इट ऑन अ रिज्यूमे टू अवॉइड रिजेक्शन बिफोर हेड? सेमेस्टर लेट किस रीजन से हुआ? ड्यू टू कोविड. अगर कोविड हुआ है तो फिर तो वैसे ही हर किसी को पता है दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन बिग राइट नाउ. हर चीज ही अनसर्टेन है, एवरीवन नोज दैट. सो सो उसके लिए इट विल नॉट मेक अ बिग ऑफ डिफरेंस. अब डिपेंड करता है, हो सकता है उसका कोर्स फेल हो गया हो तो दैट्स अ सेपरेट केस. अगर कोविड की वजह से लेट हो गया दैट्स फाइन. अगर वैसे भी हो गया है तो इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. यस. उससे होगा कुछ नहीं. तो 4 साल की डिग्री है, मे बी वो 5 साल में कंप्लीट हो जाए, या 2 साल की डिग्री 3 साल में हो जाए. राइट. सो वन थिंग, एक चीज हम मिस कर गए जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए. सो रजी अल्लाह ने पूछा है कि शुड वी ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर और नॉट? आई डोंट रिकमेंड इट. I लेकिन do. बहुत सारे लोग ऐड करते हैं. बहुत सारे लाइन मैनेजर भी रिक्वायर करते हैं अगर मैं वैसे बताऊं. बट प्रोफेशनली इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू ऐड योर पिक्चर Right. ऑन योर रेज्यूमे. Because बहुत दफा होता है, आई हैव सीन पीपल हु तो आर फिर रेसिस्ट ये एंड बात है ना डिसएग्रीइंग कि इट. अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर दी तो जरूरी नहीं है कि सारे रिक्रूटर अनबाइस्ड हो. तो वो कुछ Yeah, but बाइस्ड रिक्रूटर भी बैठे होते हैं, वो फिर तस्वीर देख के देन दे जज यू. यू शुड नॉट. plus ATS is not detecting picture. हाँ plus ATS में अगर आप अप्लाई कर रहे हो या तो वो भी डिटेक्ट नहीं करता आपके सीवी को. हाँ, वो नहीं डिटेक्ट करता.
I don't recommend. मैं CV पे picture attach करना 0% recommend करती हूँ. Hi, Trevor. So we have one more question. Is it necessary to attach a cover letter along the resume? Is it? Professionals में मुझे लगता है कर दें, fresh graduates में ना करें. बहुत few of organization जो essentially ये लिखती हैं कि या फिर उन्होंने section बनाया हुआ होता है अपने system के अंदर कि write a cover letter है, वहाँ करें, वहाँ Right. जरूर करें. राइट अगर आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, यू कैन ऐड अ कवर लेटर, ठीक है, जो You कि can आपकी have it. ओवरऑल समरी का एक छोटा सा समरी होगी रेज्यूमे की. It's a good gesture to write a cover letter for any position. So we have one more question. How does one identify the competencies in which the recruiter is looking for, if Yeah. not specified on JD as well? Sorry, How does sorry. one? So there's a question. Sorry. How does one identify the competencies in which the recruiter is looking for? अगर JD भी specify नहीं की हुई उस position पे तो. बहुत सारी कंपनीज हैं जो शायद इनिशियल कंपनीज होती हैं उन्होंने नहीं की हुई होती. वो क्या करते हैं फिर वो प्रॉपरली CV ड्राफ्ट कर दें, एजुकेशन एक्सपीरियंस इंटरेस्ट खुद ही लिख के भेज दें. दैट्स हाउ इट इज. लेकिन उन्होंने पोजीशन टाइटल तो लिखा होगा ना. पोजीशन टाइटल से यू कैन गेट व्हाट काइंड ऑफ दिस रोल रिक्वायर अ कॉम्पिटेंसी. इतना तो आप गूगल करके भी ढूंढ सकते हैं. Yes, the same और thing. वो You काम can क्या do है. Google. You can do Google, ठीक है. अगर आपको जानना है कि JD क्या हो सकती है, responsibilities क्या हो सकती है, you can do Google. हाँ, रिसर्च करने पोजीशन का तो पता ही होगा ना. पोजीशन में कौन सी कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है वो पता लग जाता है. Yes. So we have question. Question is, do companies have hidden university filter? क्या वो सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज को ही कंसीडर करती हैं और हैविंग अ बायस अगेंस्ट अदर यूनिवर्सिटीज? नहीं. और क्या वो सिर्फ लम्स और IBA को ही चांस देती हैं? ऐसा है? अच्छा I चलो, don't think let so. me give answer to this. I'm an IBA graduate. I don't prefer anyone. I just hire from every university. You hired me. I'm from past. So I hire from every university. I've hired Punjab University. I've hired LUMS. I've hired IBA. I've hired LSE. I've hired UET. I've hired colleges graduate. I've hired intermediate. तो मैं नहीं देखती. राइट. सो बहुत सारी बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज होती है, वो डिपेंड करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है. मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटीज को इतना किया जाता है प्रेफर, बट डिपेंड करता है रिक्रूटर टू रिक्रूटर उसकी क्या हाँ साइकी है. देखिए, अगर आपकी CV प्रॉपर्ली क्राफ्टेड है ना, it doesn't matter from where you have Yes. studied. Secondly, if you have the good skill set to sell yourself in an interview. पहले अगर आपकी CV properly crafted है, that will land you to the interview. Then how you sell yourself in an interview, that's the most important thing. University doesn't matter if your skill set is up to date. कि हो क्या रहा है. अच्छा, if maybe bitcoins are going, वहाँ क्या हो रहा है. Coursera से कोई न्यू कोर्स आ रहा है, मैंने कोई Coursera से कोर्स कर लिया है. Maybe जैसे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन is given by Harvard and many other universities, मैंने वहाँ से कोर्स कर लिया है. But still I am a Punjab University graduate. I will prefer you over LUMS or IBA. You need to give yourself updated. So let's take a last question. Acha, there's a question. Some soft skills appear to be very monotonous. Everyone add them. Do they still interest a recruiter, or as they are very repetitive? जैसा कि फॉर एग्जाम्पल देखो, अच्छा कुछ स्किल्स लिखी होती है, एनालिटिकल स्किल्स जो तो सभी ने लिखी होती है. आज अपनी समरी के अंदर लोगों ने लिखा होता है एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, पैशनेट. these are the keywords जो कि हर कोई लिख रहा है. that's why I recommend कि शायद समरी में ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है. वो कॉपी पेस्ट करते हैं, डाल देते हैं. that does not interest most of the recruiter. अगर वो स्पेसिफिक स्किल है, ऑल्सो अगर एनालिटिकल स्किल भी लिखी हुई है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू और असेसमेंट में पता लग जाता है कितनी स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. इफ इट्स रिटन दैट्स इज फाइन. लेकिन अगर वो सिर्फ पेज स्पेस ही लिए जा रही है और वो लिखे ही जा रही है, एक जगह लिखा है एनालिटिकल, फिर लिखा है इंटरपर्सनल, फिर लिखा है सॉफ्ट स्किल्स, फिर लिखा है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इट विल ब्रिंग नो रिजल्ट. Right. So thank you so much, Miss Mudasra, for this. I think कि काफी चीजें मुझे लगता है clarities मिल गई होगी बहुत सारे freshers को for this. So thank you so Even much. if anyone want to connect with me, I am available over LinkedIn. आप में से कोई भी मुझसे contact कर सकता है regarding anything or any help in future.
So you can search by my name. My name is Mudassira Hussain. बाकी spelling I think visible होगी आप सबको. So stay connected, all of you. Thank you so much, Ms. Mudassira. You're welcome. Take care of all of you. Okay. You Anything too. else? Thank you. No, You're thank you welcome. so much. You're welcome. Okay. Bye bye. Bye.